Okay, now we'll solve the next question. This is the question. If half-life of radioactive element is X, radioactive element X is 10 years, it converts into other element Y. In how much time the ratio of X and Y will be 1/3, given that Y is a stable nucleus. Suppose ये X है और Y में convert हो रही, Y आगे किसी में convert नहीं हो रही, कितने टाइम में रेशो 1:3 हो जाएगा. तो let the nuclei remaining of X are, let number of nuclei of X are M. Then number of nuclei of element Y will be 3 times of this. Then only ratio will be 1/3. Okay. So Y बन किससे रहा है? X से बनना है. तो इनिशियली कितनी होंगे? Therefore initial nuclei of X, that is N0, will be M plus 3M. That's 4M. तो फार्मूला लिखेंगे N is equal to N0 1/2 T to the power T by T. N कितना है? M. इनिशियल कितना था? 4M. टाइम निकालना है. हाफ लाइफ इज 10 years. ये 1/4 हो गया, तो 1/4 को हम 1/2 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी. Therefore T will be 20 years. Again same question. पहले जो क्वेश्चन किया था, it is same. This is the first way of asking the question. 1/4 कितने टाइम में रह जाएगा? Second way of asking the same question. 25% कितने टाइम में रह जाएगा? Third way जो है ये हो गया, तो 1/4 बचा. And this is the other way of asking कि रेशियो 1:3 कब हो जाएगा? So it is nothing but 1/4 जो है कितने टाइम में हो जाएगा? 2 half life में. Same answer is coming. All right. Same question in 4 different ways. कभी कभी रेशियो 1:7 दे देंगे तो उसे 1/8 आ जाएगा. 1/8 को हाफ की पावर 3 लिख सकते हैं. Next one question is this. Find percentage of nuclei remaining in half of the half-life. Okay. T is T/2. When given. So N is equal to N0 1/2 T/T. So N0 1/2 T/2/T. ये N0 1/2 की पावर 1/2. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? N0/√2. 1/√2 की वैल्यू 0.707. तो 0.707 times of N0. In other words, 70.7% of initial nuclei will remain after half of the half-life. Okay, next question पे चलते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, 2 freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours है, emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be the possible to work safely with that source. So now initial जो है, suppose safe level is R. अभी कितनी है? 64 times of R. जब remaining R हो जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे. R is equal to R0 तो ये इनिशियल जो है 64 टाइम्स ऑफ सेफ वैल्यू है.
तो 1/2 to the power t by 2 hours. तो 1/64, तो 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं, टू हाफ की पावर 6. तो पावर इक्वेट कर दो फिर. लेट्स इक्वेट द पावर 1/2. 6 is equal to t by 2. Therefore, t will be 12 hours. All right, the same question in different means. जनरली ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो होता है, either 1/4 or 1/8 or 1/6, 1/16, 1/32, 1/64, जो कि हाफ की पावर समथिंग हो जाती है. All right, this is interesting question. देखो, important also. After 280 days, activity of radioactive sample is 6,000 dps. The activity reduces to 3,000 dps after another 140 days. तो 6,000 से 3,000 हो गई, मतलब हाफ हो गई. कितने टाइम में? 140. तो इनडायरेक्टली हाफ लाइफ इज गिवन 140 डेज. ठीक है. और 280 डेज में 6,000 रह गई थी. लेट इनिशियल डेज, इनिशियल एक्टिविटीज आर डैश आर नॉट, और टाइम t इज इक्वल टू 240 डेज में एक्टिविटी कितनी बची? 6,000. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये कैसे लगाएंगे? अभी देखो, इनिशियल एक्टिविटी निकालनी है. 6,000 कितने टाइम में हो गई? तो 6,000 लिख देंगे यहाँ पर. टाइम निकालना है. हाफ लाइफ हमें इनडायरेक्टली दी थी 140 डेज. और ये भी दिया था कि 240 डेज में हुई है. ये 280 डेज, सॉरी, ये लिख रहे हैं 280 days. This is nothing but a 6,000 or not. 280 divided by 140, हाफ, तो ये 1/4 हो जाएगा. हाफ की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा नीचे. तो आर नॉट इज 4 into 6, 24,000. ऑलराइट, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था. देखो, रिवर्स ऑर्डर में 6,000 टू हाफ लाइफ में पता चल चुकी है 140. तो टोटल 240 डेज में 6,000 होता है. तो रिवर्स ऑर्डर में जाए. 140 डेज पहले कितनी थी? 12,000. और 140 डेज बिफोर 24,000. Orally, it could have been done by going in the reverse order. Okay. Next one is this question. Nuclide 131 iodine is radioactive with a half-life of 8.04 days. At noon on January 1, the activity was of certain sample was 6,000 becquerel. Using the concept of half-life without written calculations, determine whether the activity at noon on January 24 will be little less than 200 or little more than 200 or little less than 75 becquerel or more than 75 becquerel. तो पहले देखो, 8 days उसकी हाफ लाइफ है, 24 days, close to 3 हाफ लाइफ. एक हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? 300. नेक्स्ट हाफ लाइफ में 150. नेक्स्ट हाफ लाइफ में 75. तो 75 के आसपास का आंसर होगा. नाउ इट विल बी आइदर दिस और दिस. तो ये 3 हाफ लाइफ इज स्लाइटली मोर देन 8.04. तो 24 जनवरी को नून में it will be less than 3 half life, slightly less than 3 half life. तो
सैंपल में एक्टिविटी रिमेनिंग विल बी स्लाइटली मोर देन 75, ये आंसर होगा। बिकॉज हाफ लाइफ 3 कंप्लीट नहीं हुई है अभी, 3 जब कंप्लीट हो जाएंगी तो एग्जैक्टली 75, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा। तो a little more than 75 becquerel, elapsed time is little less than 3 half life। तो ये 0.04 एक्स्ट्रा दे दिया था इन्होंने, ठीक है, थोड़ा सा slightly more than 75 becquerel। Okay, moving on to the next one. The half-life period of radioactive element X is same as the mean life of another radioactive element Y। तो Y के mean life के बराबर है ये इसकी half life। It means Y की half life less than X। Therefore, half life of Y is less than that of X। Therefore, Y will decay faster। जिसकी हाफ लाइफ कम होती है वो जल्दी जल्दी डिके होता है, जल्दी कम टाइम में हाफ हो जाएगा। तो Y will decay at faster rate than X। C is the right option। Let me ask you now one question कि integration dx divided by a minus bx 0 to c, how to do this integration? तो ये log x वाला फॉर्मूला लगेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log a minus bx, और सिंस x के साथ माइनस b है ना, तो ये नीचे आ जाता है। और जब लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट c है, 0 से c, तो लिमिट लगाने के बाद ये हो जाएगा -1/b, तो ऐसे ही रहेगा। लिमिट जो लग जाएंगी, अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह पहले, तो ये हो जाएगा a माइनस बी सी, एक्स हट जाएगा। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस लॉग ए बचेगा, तो इसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं ऐसे। तो दैट्स द फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज इन नेक्स्ट वन। द nuclei of radioactive element A is being produced, ये radioactive element A है, it is being produced at constant rate alpha, अल्फा से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। The element has decay constant lambda at time t is equal to 0। decay constant lambda हो गया, this is the over। Now at time t is equal to 0, there are no nuclei of A। Initially A की कोई भी nuclei नहीं है। Calculate the number n of the nuclei of element A at time t। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ए जो है डिके भी हो रहा है लैम्डा डिके कांस्टेंट से, और फॉर्म भी हो रहा है अल्फा से। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद टी के बाद सपोज एन न्यूक्लियाई बन गई है ना, उसके बाद फर्दर डिके डी एन बाई डी टी, यहाँ पे लिखेंगे हम डी एन बाई डी टी। तो ये डिके कांस्टेंट लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू एन, बट बन भी रहा है वो अल्फा से, प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। ये हमने पीछे भी देखा था ऐसा, बट उसमें फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा से ऐड भी होता चला जाएगा। ठीक है, अभी इसको इधर ले आएंगे, डी टी को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस वाला टर्म पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिखा, और डी टी को राइट हैंड साइड में लेके गए इधर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग अल्फा माइनस लैम्डा एन बाई अल्फा, और ये -1 बाई लैम्डा नीचे आ गया, इधर टी आ गया। बस अभी सिंप्लीफाई करना है। अभी पहले तो माइनस लैम्डा को इधर भेज दो, लॉग का फार्मूला लगा दो, यहाँ से लॉग हट जाएगा, इधर ई आ जाता है लॉग के फार्मूले से, और ये टर्म जो है माइनस लैम्डा टी ऊपर चला गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये अल्फा वाले टर्म इधर ले आओ, लैम्डा वाला एन वाला इधर ले जाओ, और इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, लैम्डा को नीचे भेज दो, तो ये आ जाएगा।
ऑलराइट, तो इसमें ये इक्वेशन मेन है और इंटीग्रेशन मेन है, बाकी तो रीअरेंजिंग लॉग का फार्मूला है और अरेंजिंग फॉर एन। ऑलराइट, continue some more questions in the next class. Thank you.